So f is defined from minus phi to phi towards r. It is differentiable, and f dash x is not vanishing anywhere. That means f dash x is not equal to 0 at anywhere. Now we have to prove that f of minus phi is not equal to f of phi. So here also, if you observe this, with the similarly थोड़ा कुछ Rolle's theorem जैसा है. So here it is given that f, which is defined from minus phi to r, it is differentiable. Okay. Now tell me, if a function is wait. Can you able to see the screen? Okay, can you able to see the screen now? Okay. Now see over here. Now here Abin is asking something, that if ax square plus bx plus c equal to 0, where its both roots are complex, okay, ax square plus bx plus c equal to 0 when we are having two complex roots, okay, then the differentiated form, which will be 2x plus b equal to 0, having root minus b by 2a, will be between two roots which are complex, even though minus b by 2a is real. अब यहाँ पे आपके राइट x का आंसर क्या आएगा, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डेल्टा बाई 2, इजंट इट, वेर योर डेल्टा इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड वो नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो आपको कॉम्प्लेक्स पोर्शन मिल रहा है. ठीक है. सो इट इज, नाउ योर x इज माइनस b बाई 2a प्लस समथिंग इन द फॉर्म ऑफ आयोटा, and minus b by 2a minus something in the form of iota. Okay. रॉल्स थ्योरम और वो सारी चीजें आपके बस रियल नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, बट सपोज नाउ इट इज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए देखें, सो सपोज दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर. सो माइनस b प्लस आई ओटा समथिंग, दिस इज माइनस b बाई 2, दिस इज प्लस आई ओटा समथिंग, तो ये आपको मिलेगा z, पहला रूट. माइनस बी बाई 2 है माइनस आई ओटा समथिंग, माइनस मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा सेकंड रूट, एंड माइनस बी बाई 2 विल बी हियर.
हाँ wait. हाँ yes, screen gone. Wait, I'm also trying because recently now we are facing these net issues. Writing pad. Exactly, Vishnu sir, he is using writing pad now in another class. Okay. Okay, now see over here. So I was explaining doubt of Abin's question, minus b by 2a, right? So minus b by 2a, अगर आप उसको complex plane में दिखाना है तो its imaginary part is 0. So you can show it on x-axis. So this is your minus b by 2a. Now its first root is minus b by 2a plus iota something, right? Let us assume it is alpha. So it is minus b by 2a plus iota something. This is your alpha, right? Z आपको ऐसे दिखाना होता है. In the same way, minus b by 2a minus iota, this is your beta, or z equal to z2. This is z equal to z1. This is z equal to b minus b by 2a. Definitely वो इन दोनों के बीच में है, right? In between there somewhere. So ऐसा तो रोल्स थ्योरम आपका बस रियल नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, राइट? सो एबिन वाज आस्किंग दैट सर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ये दोनों रूट कॉम्प्लेक्स हैं तो डेफिनेटली इसका रूट हमें इसके डिफरेंशिएशन का रूट मिलेगा माइनस बी बाई 2 है, तो वो तो रियल होगा, तो क्या वो इन दोनों के बीच में होगा? तो उसके लिए ये फिनोमेना हमें मिलेगा. सो शैल वी मूव टू क्वेश्चन 10 नाउ? इज इट क्लियर एबिन? इज इट क्लियर एवरीवन? ओके. सो इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन 10, राइट, वो भी आपका थोड़ा थोड़ा रोल्स थ्योरम जैसा है, राइट? आपको डिफरेंशिएबल के बारे में बोला है, कंटिन्यूअस के बारे में नहीं बोला है. So give me comment on continuous. If your f is differentiable, then what can you tell about its continuity? अगर वो differentiable है तो क्या वो continuous होगा? Yes, right. Thumb rule जो मैंने आपको दिया था, golden rule. So f is differentiable. That means f is definitely continuous. क्योंकि वो continuous होगा उसके बाद ही हम differentiability check कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहले दोनों continuous आपकी आ गई because f is differentiable from minus 5 to 5. So and f is continuous from minus 5 to 5. Okay, open interval and close interval respectively. So definitely your f is continuous and differentiable now. So if your f is continuous and differentiable, then one c should belong to minus 5 to 5, for which your f dash c can be equal to f of b minus f of a by b minus a. Okay, so this is your mean value theorem, normal mean value theorem or Lagrange's mean value theorem. Okay, this is your Lagrange's mean value theorem. Rolle's mean value theorem में हम उसको जीरो लेते हैं. Okay, हाँ, converse भी आप use कर सकते हो. Okay, so let us use this Lagrange's mean value theorem. So here, therefore, f dash c is equal to, my b is phi, f of phi minus f of minus phi divided by b minus c. That is phi minus minus phi. That is 10. Now according to question, f dash x cannot be equal to 0 कोई भी x के लिए. So f dash c here, it is not equal to 0. So definitely if f dash c is not equal to 0, then f of phi minus f of minus phi divided by 10 is not equal to 0. तो यहाँ पे अगर 10 को उस तरफ ले जाओगे, then also you'll have this inequality, f of phi minus f of minus phi is not equal to 0. तो f of minus phi जब उस तरफ चला जाएगा,
So implies f of I is not equal to f of minus y. Is it clear now? Right. तो Lagrange's mean value theorem से मैंने solve किया. हाँ, you can also use converse of Rolle's theorem. Okay. चलो. So shall we move to next question now? Okay. After that, you are having doubt in homework questions. Now, homework questions are 4, 5, 12, 4, 5, 8, 12, 15, 16. Okay, let us see those. सबसे पहले fourth question. हाँ, जेई में आएंगे. ओके, वो आएंगे अभी, वो वाले क्वेश्चन पे हम आएंगे. वेट, राइट, उसका स्टार्टिंग है. होमवर्क क्वेश्चन 4. If y equal to under root of sin x plus square root of sin x plus square root of sin x plus आपका infinity चलता जाए, then we have to show that dy by dx is equal to cos x by 2y minus 1. Dy by dx is equal to cos x by 2y minus 1. Now, solution. So definitely this is also your ocean type of question. So here y can be written as, बोलो y को कैसे लिखोगे? Under root of sin x, isn't it? Plus y, क्योंकि y आपका क्या है? Root of sin x plus root of sin x ऐसे चलता जा रहा है. So definitely अगर आप वो हटा दोगे, so your ocean will be this. So here your y will be root of sin x plus y. Okay, question 2 also you are having doubt. Okay, wait. So after this question 4, we will see question 2 as well. So this is y is equal to root of sin x plus y. अब दोनों जगह हम स्क्वायर ले लेते हैं. So this will become y square is equal to sin x plus y. Sure. So now we can apply differentiation. So differentiation of y square will be 2y dy by dx equal to differentiation of sin x, that is cos, plus differentiation of yx, that is dy by dx. Right. Now 2y dy by dx minus dy by dx. Okay. Is equal to cos x. So if I take dy by dx as common, okay, is equal to cos x. अब यहाँ से आपको जो प्रूफ करना है वो डायरेक्टली आ जाएगा. So dy by dx is equal to cos x divided by 2y minus 1. It is easy now, isn't it? आपको जस्ट आइडेंटिफाई करना है कि ओशियन टाइप वाले क्वेश्चन कौन से हैं. राइट, अगर ये वंस यू आइडेंटिफाई, देन यू कैन सिंपली follow the same rule. Okay, sure. Now after question 4, let us see question 2 first.
अच्छा, इफ यू वांट टू डू विदाउट स्क्वायरिंग तो और डिफिकल्ट हो जाएगा, और शायद जो आंसर पूछा है वो ना भी आए, बिकॉज जैसा कि हम आगे एक क्वेश्चन देख चुके हैं कि जिसमें दो अलग अलग टाइप के आंसर यहाँ पे पॉसिबल हैं। ठीक है, बहुत सारा आई थिंक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर आप इसको विदाउट स्क्वायरिंग करोगे तो एक आंसर आएगा, बट डेफिनेटली वो डिफिकल्ट होगा, और जो वो पूछ रहे हैं वो ना भी आए। सो दिस dy by dx कैन बी रूट एफ ऑफ एक्स, तो वो आपका वो होगा 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स। अब ये आपका हो जाएगा 1/2y इंटू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो 2y को इधर ले जाएंगे। ओके ओके, हाँ, अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो no issue। हाँ, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, हाँ तो सेम आंसर आ रहा है ये लकीली। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1 विदाउट फाइंडिंग स्क्वायर और विदाउट स्क्वायरिंग। ओके, तो तब भी आपका सेम आंसर आ रहा है। ओके, सो लेट अस सी नाउ होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, यस, गॉट इट। Check if Rawls theorem can be applied to a function given the interval। जस्ट यहाँ पे हमें चेक करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप बोर्ड्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस एक्स माइनस 2 होल टू द पावर 2/3 इन क्लोज इंटरवल 1 2 3। चलो, अब वो चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? -1 टू द पावर पॉइंट, ओके वेट, 0.6। देखना पड़ेगा मनोज, वेट। लेट्स जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा क्या। फिर वो यूज करना पड़ेगा इसलिए। अच्छा, हाँ, देख लेंगे। ओके, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या एफ आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं। हियर ओके, सो कंटिन्यूस के लिए यह है आपका x माइनस 2 होल टू द पावर 2/3। ओके, मतलब x माइनस 2 का आपको क्यूब रूट निकालना है 1 और 3 के बीच में, और फिर उसका स्क्वायर करना है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, अगर आप x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो ये 1 माइनस 2 -1 होगा, -1 का क्यूब रूट -1 होगा, और -1 का स्क्वायर +1 होगा, मिल जाएगा। इन द सेम वे 3 माइनस टू 1, 1 का क्यूब रूट 1, 1 स्क्वायर 1। तो 1 और 3 के बीच में आपको सारी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, राइट, -1 और 1 के बीच में, इजंट इट, मतलब उसका स्क्वायर होगा। ओके, सो हाँ, कंटिन्यूस है, क्योंकि बीच में ऐसा कोई भी पॉइंट वो नहीं है कि जहाँ पे ये डिफाइंड ना हो, राइट। तो हियर एफ इज कंटिन्यूस बिटवीन 1 to 3। अब हमें उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने आपको दिखाई थी दूसरी मेथड कि आप एफ डैश फाइंड करो और चेक करो कि एफ डैश आपका कंटिन्यूस है या नहीं। सो हियर योर एफ डैश एक्स विल बी, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 3? 0। अब यहाँ पे आपका ये 2/3 आगे आ जाएगा, x माइनस 2 टू द पावर 2/3 -1 नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 2। So here your f dash x will be, हाँ, तो रोल्स थ्योरम के लिए ये चेक कर रहे हैं ना, रोल्स थ्योरम की पहली कंडीशन को कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। सो 2/3 नाउ दिस विल बिकम x माइनस 2 होल टू द पावर 2 - 3, दैट इज -1/3।
-1/3 पावर है तो मैं उसको डिनोमिनेटर में लिख सकता हूँ x - 2 होल टू द पावर 1/3, राइट, बिकॉज इट इज -1/3 तो डिनोमिनेटर में 1/3 हो जाएगा एंड इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, राइट, 1 + 0। नाउ अब मुझे बताओ क्या ये डिफरेंशिएबल है बिटवीन 1 to 3? डिफरेंशिएबल मतलब आपको ये चेक करना है कि क्या वो 1 to 3 के बीच में कंटिन्यूअस है। ओके, सो टेल मी इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ये आपका कंटिन्यूअस है या नहीं 1 और 3 पे? हाँ, चेक। जब आपका x इक्वल टू 2 होगा तब आपका f डैश x डिफाइन नहीं होगा। सो हियर f डैश x is not defined or not continuous at x equal to 2, and if your f dash x is not continuous at x equal to 2 implies f is not differentiable at x equal to 2. So f dash x is not continuous at x is equal to 2 implies f is not differentiable at x equal to 2. एंड अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो फिर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। implies Rolle's theorem is not applicable. फिर हम डायरेक्टली f(1) और f(3) इक्वल है कि नहीं करके चेक कर सकते हैं ना सर। डायरेक्टली f(1) और f(3) से हमें पता नहीं चलेगा ना, तो बीच के 2 वाले पॉइंट के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, देखना है तो ऐसे देखना पड़ेगा कि बीच के सारे पॉइंट के लिए आप देख पाओ ना। इज इट क्लियर नाउ? हाँ सर ठीक है, हाँ सर, हाँ सर ठीक ठीक है, हाँ। है। सर हाँ, यस। सर मैंने डायरेक्टली f(1) और f(3) निकाला, दोनों इक्वल आया मुझे, तो फिर हाँ, मैंने f'(c) निकालने गया। हाँ, कंडीशन f'(c) इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। नहीं पर मुझे बीच ऐसा में कोई ये है x ना। मिलेगा ही नहीं जिसके लिए 0 होने वाला। अच्छा, क्या 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 आपने एफ ऑफ, वापस बोलो वापस बोलो। हाँ सर, वो कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होने के लिए f'(c) 0 होना चाहिए। हाँ, 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 पर वो उससे पहले आपका हाँ, तो कंटिन्यूस फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन को कौन सा है? डिफरेंशिएट। हाँ, उससे पहले आपका फंक्शन ये इंटरवल में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ना, तभी हम वो रूल अप्लाई कर सकते हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0, इजंट इट? हाँ सर, हाँ, और डेफिनेटली वो भी आपका राइट लेकिन है। f'(c) कभी 0 होगा ही होगा नहीं। ही नहीं, होगा ही नहीं, एग्री, वो भी है। ठीक है, बिटवीन 1 to 3 तो नेवर। ओके, so this is your question number 2. Now after that you are having doubt in question number 5. Okay, let us see question 5 now. If 2a plus 3b plus 6c equal to 0, if 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then prove that at least one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 lies in the interval 0 to 1. So if 2a plus 3b plus 6c equal to 0, then at least one root of the equation
इक्वेशन है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसका एक रूट आपके 0 to 1 के इंटरवल में लाई करता है। ओके, तो इसका एटलीस्ट एक रूट समझना, तो इसका एटलीस्ट एक रूट ऐसा है जो आपको मिलेगा 0 और 1 के बीच में। ओके, मतलब वो ज्यादा भी हो सकते हैं और वो 0 और 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, सो इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इक्वल टू 0, और आपको ऐसा बोला गया है कि इसका रूट 0 और 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, इसका रूट 0 और 1 के बीच में मिलेगा, तो अभी हम देख के गए हैं फ्रॉम रोल्स थ्योरम, अगर 0 और 1 के बीच में मिल रहा है तो डेफिनेटली a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, और इसके बीच में आपको मिलता है c, राइट, c बिलोंग्स टू a टू b। बट सिंस हियर ऑलरेडी c हमारा क्वेश्चन में, तो आप उसे कुछ अलग भी लिख सकते हैं। तो कैन वी राइट देम अल्फा, राइट, सपोज अल्फा बिलोंग्स टू a टू b, हमें ऐसा मिल रहा है, राइट, और यहाँ पे भी ए बी है, तो हम इसको कैपिटल ए बी सी ले लेते हैं, समझो, राइट। तो सपोज कैपिटल ए इक्वल टू 0, कैपिटल बी इक्वल टू 1। Now we will assume that we are getting at least one capital C belongs to this open interval a to b, for which our f dash c should be 0.